Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 44 lecture of Basics of Industrial Engineering. In the previous series of the lectures, we tried to discuss the basic things about the waste management, and in the last series of the lectures, we tried to discuss about the uh, the reason for the generations of the waste and accumulations of the absolutes, surplus, and the scraps item. Before that, we are discussing about the dimensions of the waste, and then characteristics, classifications of the wastes, and basic things about the waste management. But in today's lecture, this is the last lectures. In these lectures, I will cover the two subtopic of this chapter's end. Today, we also completes our syllabus as per the GTU. Last two subtopic is remaining is in this chapter from this chapters, and this is the last two subtopic of your GTU syllabus also. So after these 44 lectures, your syllabus will be completed as per the GTU. And GTU is suggested that you have I have to take the 45 lectures and to complete this syllabus, and I am completing this syllabus in the 44 series of the lectures. So let's start the discussions over the identifying the waste. So basically, in today's sessions, we try to discuss the basic learning objective, which is about the discover the waste in your environments. Second, which is about learn how to remove the waste. Third, things which is about how to prevent the waste. This three thing is have some kind of the basic objectives in our today's discussions. Now the content of my today's lecture, which is about the what is the waste. Second, the four model of the waste. Third, how to discover the waste. Fourth, how to remove the waste. Fifth, how to prevent the waste. So these are the five basic things which is we have to complete it before the today's ending of the lectures. So let's start the discussions over in the details. So the great scientist Peter Drucker is said that there is a nothing so useless as doing effectively that which should not be done at all. जो भी चीज़ जो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो एक तरीके से हम हमारे लिए जो है जो जो भी हमें उसको काम दिया है वो अफेक्टिव तरीके से अगर मशीन काम नहीं करे तो एक तरीके से वो यूजलेस है हमारे लिए, राइट? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमेंटिंग द वेस्ट? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के और एलिमिनेट करने से? सो बेसिकली हम इसके पीछे जो आइडेंटिफाइंग के बेनिफिट्स और एलिमिनेटिंग द वेस्ट जो है, तो ये दो तरीके से हो सकता है. तो पहली चीज़ हो सकती है कि बेनिफिट्स कंपनी के लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकते हैं. So for the company, first we are trying to discuss the benefits for identifying the waste about the company. So for company, the cutting the hidden cost of the production. Suppose we are identifying that kind of the waste. So suppose I am manufacturing one of the product with at the cost of the 50 rupees, right? मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसके पीछे मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो 50 रुपये लग रहा है. उसके अंदर इंक्लूडिंग द मटेरियल कॉस्ट, इंक्लूडिंग द लेबर कॉस्ट, इंक्लूडिंग द जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है वो कॉस्ट, इंक्लूडिंग द जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा कुछ कॉस्टिंग्स जो लग रहे हैं वो सारे कॉस्टिंग मिलाकर मुझे वो प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपये के अंदर सपोज पड़ रही है. तो अगर उसमें से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट में मैं किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करके उस वेस्ट को कम कर दूँ, या फिर उसका रीयूज़, या फिर उसको कहीं पे उसका कैपिटल इन्वर्ट जो है वो कैपिटलाइज इसमें से जनरेट हो सके, ऐसा कुछ करूँ, तो
यहाँ से वो डायरेक्टली जो वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे वो एक तरीके से जो भी एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट था उसमें से वो वहाँ पे कटौती करेगा। तो सपोज़ जो भी वो सपोज़ उस प्रोडक्ट के टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टोटल जो वेस्ट हो रहे थे ये वेस्ट इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, वो सारा जो है वो मैंने अलग अलग जगह से इलेक्ट्रिसिटी में से 2 रुपये बचाने की कोशिश की, मशीन को सेटअप करके जो है वो मैंने कुछ लेबर कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश की, फिर मटेरियल का वेस्टेज में से 2 रुपये 3 रुपये कम करने की कोशिश, ऐसे मिला के सब कुछ में स्क्रैप जो मिल रहा है वो स्क्रैप मैंने बेच के 2.5-2 रुपये वापस उस लिए। तो उसमें से जो है मुझे मेरा अब प्रोडक्ट जो है वो पड़ रहा है 40 रुपये के अंदर। तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उसमें से हमने 10 रुपये कटौती करके बचाए, तो ओवरऑल वो बेनिफिट्स हो गए। दूसरा बेनिफिट कंपनी के लिए ये हो सकता है विच इज़ इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शंस। अगर हम लोग सेम क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो जो पहले मार्केट में 50 रुपये के अंदर जो है वो बिक रही थी, अब उस सेम चीज़ को अगर हम लोग 40 रुपये के अंदर मार्केट में उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर जो है वो उसके परफॉर्मेंस के साथ तो ऑलरेडी हैप्पी थे, अब वो कॉस्ट कटिंग से जो है वो ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शंस कस्टमर को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग्स विच इज़ अबाउट टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, विच इज़ इंक्रीजिंग द जॉब सेटिस्फेक्शंस। अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो है ऐसी चीज़ें करने से जो है एम्प्लॉय के प्रति जो है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो एक तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शंस जो है वो बढ़ेगा, जॉब सिक्योरिटी की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। देन विच इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट। अब एम्प्लॉय जो है वो एक तरीके से जो भी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहे वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो एक तरीके से एम्प्लॉय को भी ये बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट हो सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट। नेक्स्ट विच इज़ देर आर द 4 मॉडल्स ऑफ द वेस्ट। वेस्ट के लिए जो है वो हमारे पास बेसिकली 4 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल जो है विच इज़ अबाउट द 3MUS मॉडल्स। सेकेंड मॉडल विच इज़ अबाउट द 5M+Q+S मॉडल। थर्ड मॉडल विच इज़ अबाउट द फ्लो ऑफ गुड्स मॉडल। Fourth model which is about the 8 types of the waste in the manufacturing or the servicing and offices. So now what are the 3MUS concepts? So there are the 3M, 3M अक्षर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं हमारे पास। वो जापानीज़ के अंदर उसको पहले डिराइव किया गया था, तो वो जापानीज़ नाम है। फर्स्ट विच इज़ अबाउट द मूडा, second which is about the mura, and third which is about the muri. So muda that means the west, mura that means the unevenness, and muri that means the overburden. So it is increasing the west. Suppose the activity that which is not adding some kind of the value, that is the west activity. Mura that means the unevenness. Suppose we are not equally divide the workload on even stations or to the employee, which is also one of the reasons for generations of the waste. Then the muri, that is the overburden. If suppose you are overburden of such of the employees and such of the machines, that is the also one of the reason for the generations of the waste in your organizations. So we have to focus on these 3M. So that is the explanations of the this Japanese word into the English translations. Muda that means the waste, mura that means the unevenness, inconsistencies, or some we can say that there is kind of the variations, the fluent variations. Then the muri that means the overburdens and the irrationalities. So in चीज़ों से जो है वो हमें ये चीज़ पता चलती है। The muda that means a capacity which is exists the loads. Mura that means a capacity sometimes exists the loads. Load which is sometimes exists the capacities, and muri that means the load which is exists the capacities. Now there are the 8 types of the waste in the manufacturing. The first which is about the overproductions.
सर यू आर प्रोड्यूसिंग अ मोर दैन वॉट द कस्टमर इज़ नीड. आप कस्टमर को जो ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो एक तरीके से वेस्ट है. Second, which is the waiting. So if the employees has to wait for the part, machines, process, or the information, that is also a one kind of the waste of that is also a one kind of the waste. Then the motions you are creating in your organizations, there you are creating some kind of the extra physicals and the mental motions from the employee, which is does not add any kind of the values in your total, so which is also a kind of the waste. Then fourth, which is about the transportations. If you are moving from the one place to another place which is unwanted, which is also a one kind of the waste in the manufacturing. Then the inventories. So if the buildings and the storing the extra product the customer has not ordered, जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया ही नहीं है, ऐसी चीज़ों को आप अपने वहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको जमा करेंगे, तो फिर वो भी एक तरीके का वेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. डिफेक्ट दैट मीन्स reprocessing scrap on correcting the work, that is one kind of the defects in the waste management in the manufacturing. Then the over processing, which is adding the excess values when a customer does not require it. And the intellect, that means you are not using the employee's full intellectual contributions. Now there are also 8 types of the waste in the production system, that means the retentions, transportations, retention, processings and inspections. The transportations, processing waste, defects, inventories, overproductions, motion waste, then the waiting times, and the intellectual waste. There are the different kind of the waste in the production systems. Now the next, which is the overproductions. As we are talking about the overproductions, it is the worst waste of the 8 of the wastage. ये सबसे गंदी तरीके का जो वेस्ट है वो 8 में से ये है ओवर प्रोडक्शन. इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द जस्ट इन टाइम प्रोडक्शंस. ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट वाला वेस्ट है. तो ओवर प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम की मेन कंसेप्ट क्या था कि आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करो, राइट. ज़्यादा स्टोर करके मत रखो. तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन दैट मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है वो आपने बना के मैन्युफैक्चरिंग करके रखा है, प्रोडक्शन करके रखा है. तो ओवर प्रोडक्शन मीन द मेकिंग द वॉट विच इज़ अननेसेसरी. जो ज़रूरत नहीं है वो आपने बना के रखा है. व्हेन इट इज़ अननेसेसरी एंड इन द अननेसेसरी अमाउंट, एक तो वो ज़रूरी नहीं है और आपने ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट के अंदर अननेसेसरी आइटम को प्रोडक्शन करके रखा, तो ये 2 तरह के लॉस यहाँ पे आपको जनरेट करके देगा. Then which is occur when you are manufacturing the items when there is no order. अब ये चीज़ तभी भी हो सकती है जब आपके पास ऐसी किसी भी तरीके का चीज़ का ऑर्डर नहीं है, तब आपने जब मैन्युफैक्चरिंग किया तो ये चीज़ यहाँ पे ओवर प्रोडक्शंस में कैलकुलेट होगी. Now there are some of the guidelines for removing the waste. The first guideline which is you have to adopt the necessary attitudes. आप जब भी वेस्ट को रिमूव करने की बात करें तो आपके पास एक सही जो है वो एक गाइडलाइन होनी चाहिए किस तरीके से उस चीज़ को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग्स विच इज़ अबाउट रिमूविंग द वेस्ट इन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स. You can also removing the waste in the actions of the peoples. आप लोगों के एक्शंस में से भी आपको वेस्ट को निकालना है. एक्शंस की वजह से जो भी रॉन्ग एक्शंस की वजह से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो वेस्ट को भी आपको रिमूव करना है. यू हैव टू रिमूव द वेस्ट इन द वे ऑफ द पीपल, गुड्स एंड मशीन्स आर कंबाइंड्स. यू हैव टू रिमूव द वेस्ट. आपको वेस्ट को रिमूव करना है इन द वे ऑफ द पीपल, गुड्स एंड द मशीन्स आर कंबाइंड. Now the disposals of the wastage. So the disposals of the wastages are, this is the very important aspects in the last subtopic of this chapters कि किस तरीके से हमें disposals करना चाहिए. अगर हमारे पास कोई वेस्ट है, कोई सॉलिड वेस्ट है,
वो वेस्ट किसी भी हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकता है, मटेरियल वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो आप ऐसे जो वेस्ट आपके वहाँ पे जनरेट हो रहे तो उसको किस तरीके से डिस्पोजल करोगे। अब यहाँ पे डिस्पोजल के साथ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक डिस्पोजल किसी भी तरीके का वेस्ट हो तो ये हर एक तरीके का वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल एक सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव मैथडोलॉजी के साथ परफॉर्म होना चाहिए। So the definitions of the disposals of the waste, that means a proper dispositions, right, एक तरीके से proper dispositions करना of the discarded and the discharged material, जो भी discard हो चुका है, waste हो चुका है या फिर discharge हो चुका है, ऐसे मटेरियल को आपको एक डिस्पोजिशंस करना प्रॉपर तरीके से इन अकॉर्डेंस विद द लोकल एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड दी लॉ। वो सारी चीज़ आपको लोकल एनवायरमेंटल्स जो गाइडलाइंस है और जो लॉज है आपके पास उसको मद्देनज़र उस चीज़ को आपको परफॉर्म करना है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द कलेक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स, प्रोसेसिंग, recyclings or the disposals and monitoring of the waste material. Now the solid waste are the term solid waste which is including as a garbage which is a food waste, rubbish that means a paper, plastic, woods, metals, throwaways, containers and glasses are the rubbish. Then the demolition product that means a bricks, masonry, pipes, these are the demolitions product. Then the sewage treatment residues, which is also the one kind of wastage of, and last which is a dead animals, manures and the discarded materials. So there is a different kind of the sources of the reuse. The first which is a रिफ्यूज़ करने में जो भी रिफ्यूज़ के जो सोर्सेज है वो सोर्सेज इस प्रकार से है। स्ट्रीट रिफ्यूज़ है, फिर मार्केट रिफ्यूज़ है, फिर स्टेबल लीटर रिफ्यूज़ है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़ है, उसके बाद आता है डोमेस्टिक रिफ्यूज़ है। तो इस तरीके से रिफ्यूज़ जो है वो किया जा सकता है। अब उसके आगे की जो डिस्कशंस है हम लोग उसके ऊपर फोकस करें तो स्टोरेज जो है इस वेस्ट का तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट विथ यूजिंग अ गैल्वेनाइज्ड स्टील डस्टबिन, सेकंड विच इज़ विथ यूजिंग अ पेपर सैक, देन थर्ड विच इज़ द पब्लिक बिन्स। सो फर्स्ट विच इज़ अ गैल्वेनाइज्ड स्टील बिन्स डस्टबिन्स, it is a closed fitting covers is a suitable receptacle for storing and refuse. In India, the per capita is estimated to vary from 1 by 10 to the 1 by 20 cubic feet. For a family of the 5 members, a bin which is having the capacities of the 5 by 10s to 1 by, or we can say that the 1 by half cubic feet of the galvanic steel dustbin size. Next, which is a paper sacks. So paper sack is a recent innovations in the Western countries in the paper sack. So the refuse is stored in the paper sack and it is the itself is to be removed. इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि पेपर सक के अंदर आपका जो भी वेस्टेज है उसको रैप करके रखे, फिर वो अल्टीमेटली एक कुछ टाइम के बाद वो इटसेल्फ जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन द थर्ड विच इज़ अबाउट द पब्लिक बिन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पब्लिक बिन? तो ये सोसाइटीज़ वगैरह के लिए जो है वो ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्टिव रहती है। जैसे पब्लिक बिन्स आर फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ द पीपल्स, फॉर कैप्ट इन अ कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म्स, वो कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको रखा जाता है। इट शुड बी हैंडल्स विद द एंटायर मैकेनिकलीज बाय द लोरीज विच इज़ फिटेड विद द क्लेम। उसको जब वो पूरा भर जाता है तो उसको मैकेनिकली क्रेन से जो है उसको लिफ्ट करके वो खाली किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो भी एक तरीके से आपका जो वेस्ट है उसको पहले इकट्ठा करके फिर उसका डिस्पोजल्स किया जाता है वो सिस्टमेटिक मैनर से।
collection which is depends upon the funds which is available, house to house collections, or in the India there is a dump to refuse the nearest public bin. वो इंडिया के अंदर ये नॉर्मली प्रैक्टिसेस रहती है कि अपने वहाँ पे एक डंप साइट्स रहती है कि जो जहाँ पे एक पूरे बीन में से जो इकट्ठा किया गया वो जो वेस्ट है उसको वहाँ पे एक तरीके से डंपिंग साइट पे डंप किया जाता है. एंड द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द वेस्ट एक तरीके से इस तरीके से वेस्ट का जो है वो मेडिकल वेस्ट हो सकता है, इको वेस्ट हो सकता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है. तो फिर उसके बाद उसका इसी तरीके से जो हमने डिस्पोजल्स हमने डिस्कस किया एक साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव मैनरिज्म्स के अंदर इसका डिस्पोजेबल होता है. तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट को डिस्कशन करने की कोशिश की है और इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है और आपका सिलेबस भी इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है. So after watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections. You can also ask if you have any kind of the doubt into the comment section. So thank you so much for watching this video lectures. Thank you.